آپ صحافی ہیں یا جماعت کے ترجمان ہیں؟ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں یاسمین راشد کی باتیں سامنے نہیں آئی تو وہ موس نے پاکستان سے ہم نے معافی منگوائی ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے؟ کہتا تھا کہ کس بات کی معافی، اب کہتا ہے مشروط معافی. کیا کہہ رہا تھا مراد سعید کیا؟ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کیا ہے؟ آپ نے جبار مرزا صاحب کی اگر کتاب نہیں پڑھی ہے تو برائے کرم وہ پڑھ لیں. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ کس نے کیا؟ وزیر کس نے موصوف کیا قبضہ تھا؟ عمران خان نہیں یار صاحب تھا. بھٹو سے ڈرتے ہو، ڈرتے ہو بھٹو سے، ڈرتے ہو ہاں، بھٹو سے ڈرتے ہو. کس نے کیا؟ اور یار کیس چل گیا، یہ ختم ہو چھلوارے گیا. کس نے؟ جو شخص ایک ایسی بیٹی کا باپ ہے جو بغیر کسی شرعی رشتے کے رشتہ تھا، اور امریکہ کی کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے، اور اسے جب بھی پوچھا گیا وہ اس پہ لاجواب ہوا ہے. کمزور ہے یا مضبوط ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے. ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں، پھر چوہدری صاحب کو دیکھ رہا ہوں. ارے وہ زید فاروق ملک صاحب ضرورت سے زیادہ سخت سوال کر گئے تھے کہ یار آپ کو اتنا موقع بھی نہیں دیتے کہ آپ منہ دھو لیں. السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہماری صحافتی بیٹھک جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کی جائیں آج کی خاص خبریں اور پورے ہفتے کی جو خصوصی خبریں ہیں ان پہ جو ہمارے سینئر صحافیوں نے نظر رکھی ہوئی آپ سے شیئر کریں. اور رات کی اس پہر چاروں سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے سب سے آپ کا شکریہ کہ بڑا کام کر کے، بلکہ نادر بلوچ صاحب تو ابھی بڑی خوشخبری لے کر آئے کہ ہم نے گولڈ میڈل میں جو ہے بڑا پاکستان نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. نادر بلوچ صاحب جو ہے، اون شرازی صاحب، اصغر چودھری صاحب اور امجد قریشی صاحب، سب سے پہلے ویلکم. اور میں آپ لوگ سے بالکل بھی مشروط معافی نہیں مانگوں گی، رات کو بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن جس نے مشروط معافی مانگنی تھی وہ اعلان ہو چکا ہے، اور اس پہ وضاحت دیں گے ہمیں میرے سارے سینئر صحافی کہ کن وجوہات پہ مشروط معافی مانگی جا رہی ہے. جی نادر صاحب. ماشاءاللہ جی، آغاز بھی بڑا زبردست ہے. انجام خدا جانے. انجام خدا جانے. بہرحال سب سے پہلے تو قوم کو مبارکباد کہ 40 سال بعد پاکستان کی خوشخبری ملی کہ آپ نے اولمپکس میں جو ہے ایک بڑا میڈل حاصل کیا ہے. ارشد ندیم صاحب نے، میاں چنوں سے اس نے تعلق ہے. ہم نے کر لیا میڈل. جی گولڈ میڈل حاصل کر لیا. اچھا. اور جی آپ اچھے کرتے رہے. وہ گولڈ بکنے کے لیے تو کام نہیں آئے گا کہیں. بہرحال لیکن افسوسناک بات ہے کہ رانا صاحب واپس آ گئے. اچھا ہو گیا. عمران خان وہاں پہ ہوتا تب گولڈ میڈل جیتتے نا. اچھا، بندے ڈال کے گھنگرو توڑ دینا کہ خان کی وجہ سے جیتے ہیں. اچھا سر، میرا وقت اگر اسما صاحب انہوں نے لینا ہے تو پھر مجھے اس سازش کا پتہ چل چکا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر دیکھ لیں یہ نون لیگ کے 3 افراد انہوں نے سازش کر کے مجھے بلایا. میری بات سنیں، اگر نہیں ہے اس پارٹی کا بڑبڑانا، چیخنا، چلانا، آپ مجھے میرا وقت دینے دیں. یہ طریقے صحابہ لے کے ان کا وقت ہاں میرا وقت لے لیں. آپ اپنے دلیل کے ساتھ گفتگو کر آپ بعد میں دھرنا دیجیے گا. ابھی تو میں نے کیا کہتے ہیں اولمپک سے سٹارٹ کیا اور چیخیں شروع ہو گئی. کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ معذرت کریں. کس کی بات کی معذرت کروں بھائی؟ پہلے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، آپ نے میرے وقت میں انٹرپٹ کیا ہے. کیوں اسما؟ آخر میں خود مانگا اسما ہے کیونکہ میرے وقت میں انٹرپٹ کیا. بہرحال مشروط معافی کا مشروط معافی سارے اچھی خبر تھی، اس سے آغاز جی کیا تاکہ چلے رائے دینے نے مشروط معافی کے. تو اب آتے ہیں جناب وہ اس خبر کا جو ایک خاص چینل سے چلوائی گئی، اور ماشاءاللہ لکیر کے فقیر ہمارے میڈیا، یا لکیر کے فقیر ہیں یا ماشاءاللہ مجبوریاں ہوتی ہیں. چینل نے کیا چلایا سر سیم چلایا. میں اس پہ آپ میں نے میڈیا بات کرو، آپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سچ ٹی وی کا نام لے. حالانکہ میں نے میڈیا کے جنریک میں نے ٹی وی کا بتا دے اس نے کیا. سر دیکھیں میری بات پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سچ کا نام لیا، میں نے میں نے تو جنریک بات کی. بیٹھ جاتا ہوں میرے خیال میں. جنریک بات انہوں نے کہا سب چینلز نے چلائی. ٹھیک ہے نا، میرے نام لیا میں نے تو ہم کا نام نہ آپ نے کہا آپ نے پوائنٹ اٹھ گیا کہ آپ کے آپ کے چینل چینل نے میں نے کیا نام تو کسی جب سارا میڈیا بات کیا تو سارے میں سارے آ جاتے ہیں. سارے آ جائیں. میڈیا نے وہ ٹھیک بات کی تھی. چلیں اب بلوچ صاحب بتا رہے کہ اس کے پیچھے داستان کیا ہے، سیاق و سباق کل مجھ بتائیں. سے انہوں نے اسما نے بات کی تو اس وقت بھی میں نے ان کو بتایا کہ بات مکمل یوں نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک 190 ملین کیس کا سماعت تھی وہاں پر. صافی ہمارے دوست جن سے میری بات ہوئی تو پہلے مکمل ہونے سے بات اگر آپ نے کرنا تو میں یہ آپ کو دیتا ہوں. اتنی دیر تو آپ کے پچھلے 3 منٹ سے نہیں تو آپ کے اگر کھچکچ لگی رہے گی تو یہ تو اینکر کا مسئلہ ہے نا، آپ کا مسئلہ تھوڑی ہے. چلے آپ بات کریں سب کو موقع مل رہا ہے نا، وقت کی اس کمی میں ہے. واضح ہو گیا. آج کی ملاقات تھی اور آج بھی صافی نے سوال کیا، اس میں کلیئر ہو گیا جناب. ایک سوال تھا، سوال کے جواب میں مجھے کہا گیا کہ جناب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں وہ مسلسل دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں ہے، تو آپ معافی مانگ لیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ تھا بنیادی سوال جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بات معافی کی ہے تو بات میں یہاں پر یہ نقطہ رکھنا چاہوں گا
कि एक बात सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम हो चुकी है कि हाई कोर्ट से मेरी जो ऑब्जेक्शन थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। सबसे पहले जो चीज़ तय हो चुकी है आपको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब रही बात दूसरी बात में मैंने कहा कि जुडिशल कमीशन बना ले, जुडिशल कमीशन में आप अपने सीसी फुटेजेस भी रख दें, सब कुछ रख दें। अगर चीज़ साबित हो जाए कि मेरे वर्कर्स ने आगाज़ किया, कोई मुलविस है, तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँ और निकाल भी दूँ। ये थी पूरी बात, ठीक है। जिसका आखिरी हिस्सा तो निकाल दिया गया, लेकिन जी अब शिराजी साहब आप बताइए, अब शिराजी साहब बताना चाह रहे हैं, अब शिराजी साहब अब बात सुने बलोच साहब, या तो ये समझते हैं और इनका लीडर ये समझता है कि कोई नहीं, कौम के सामने आवाज फैसला करेगी। हाँ, अब बात तो करने देना, बात तो कितनी करने तकलीफ हो रही है, अब बात तो करने दे। अवाम बेवकूफ है, अवाम बेवकूफ है। मुझे ये बताएं आधी खबर चलाई गई, कि आप उसके बारे में बताएं, सुने ना, आधी खबर के बारे में। हसान न्याजी जो इनका भांजा है वो पतलूने फौजियों की दिखा रहा था। इमरान खान की तीनों बहनें बाहर खड़ी थी, कोर कमांडर है उसके, अजीब पता नहीं किस तरह की ये जर्नलिज्म करते हैं और किस तरह की इनकी, मतलब आप मुझे ये बताएं, यास्मीन राशिद की बातें सामने नहीं आई? तो वो पाकिस्तान में कौन सा कानून है कि एक शख्स रिमांड पे हो और उसको चीफ जस्टिस बुला के और जजों वाले रास्ते से लेके जाए? क्या कह रहा था मुराद सिंह, क्या और सीसीटीवी फुटेज क्या है, और कितने एविडेंस चाहिए? खुद मान रहा है कि मैंने पेट्रोल पंप बनवाए, उधर अपने जनाब घर के पास जमान पार्क जो है वो पिकवाए हैं। ये अनोखा लाडला है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो उमर अता बंदियाल की बात कर रहे हैं। वो जो कहता है रिमांड पे एक मुल्ज़िम है, कौन सा कानून, मुझे सिर्फ ये बता दें पाकिस्तान में कौन सा कानून है कि एक शख्स रिमांड पे हो और उसको चीफ जस्टिस बुला के और जजों वाले रास्ते से लेके जाए और कहे कि रात को 8 दोस्त दें, रात के इसके साथ गप लगाएं और इसको रिलैक्स रखें, और फिर उसके बाद नहीं मेरे सुन लेना, जब आपके पास जवाब नहीं होता फिर यही होता है ना, सुन तो लेना, आर्गुमेंट सुन ले, सब सुन ले, मेरे कान सुन आप ऐसी बातें सुनने की आती नहीं है ना, आपकी ऐसी बातों से कान पड़ते हैं। तो आखिरी बात, अब जरा उसको आपने 6 मिनट उधर दे दिए, अभी बात शुरू की है और आपने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया। तो बात ये है कि आर्गुमेंट करें, मुझे जवाब ना दे, आपने आप उसके सवाल पे बात करनी है आपने। अच्छा देखिए, आपने एक राय रखी है, मैं अवाम के सामने उसी राय को साहब आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, माफी बन जाएगी। सुने, वो जो दिखा रहा था पतलून, इमरान खान नहीं मानेगा उसका भांजा है, इमरान खान नहीं मानेगा कि उसका भांजा है जो पतलून का नंबर बता रहा था। इमरान खान नहीं मानेगा कि वो जनाब मुराद सईद जो कह रहा है, वो जो अली अमीन गंडापुर कह रहा है, वो जो यास्मीन राशिद लोगों को लेके जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक तयशुदा चीज है कि इमरान खान ने हमेशा झूठ बोला है, अच्छा हमेशा उसने यू टर्न लिया है, उसने एक बात की है, फिर वो दूसरी बात पे, पहले कहता था कि किस बात की माफी, अब कहता है मशरूत माफी, फिर आगे चंद दिन आगे चलेगा, जब पता चलेगा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अगर होने जा रहा है तो फिर ये उसके बाद एक और स्टेप लेगा। अब ये कह रहा है कि सारे बंदे पकड़ लो जो मुलव्वस है, ये तो अपने पार्टी के लोगों को बिट्रे कर रहा है, ये कैसा लीडर है? चल चौधरी साहब, इससे पहले कहीं और चौधरी साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान, अच्छा माजी में भी क्या मशरूत माफिया मांगी गई है सियासतदानों की जानिब से? देखें, पहले एक तो मैं ये बात कहूँ कि जरा थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को आप देख लें। ठीक है, इस वक्त इस पे कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। उसके सर कल्ट है, यह लीडर है, एक आम बंदा उसे लीडर मानता है। स्वाबी जलसे के अंदर हमने देखा कि 70 और 80 साल के जो बुजुर्ग थे वो भी वहाँ पर थे, 16-17 साल के बच्चे भी वहाँ पर थे। इस पे कोई दो राय नहीं है। और ग्राउंड भी खाली था। जो 9 मई का वाक़या है, हम ये कह समझते हैं कि उसके जो मुल्ज़िम हैं उन्हें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब के दोस्त अगर सर उन्हें तो लाजमी मिलनी चाहिए, हम तो कहते हैं ठीक है। वहाँ पर भी चंद लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जो कहती है इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान, देखो वो गलत है ना। मैं तो यही कहता हूँ ना सर, मैं यही चीज कहता हूँ। जो आपने बात की किसी और ने माफी मांगी है, बिल्कुल आपको याद नहीं है, यहाँ पर मोस ने पाकिस्तान से हमने माफी मंगवाई है। और मियाँ साहब तो खैर एनआरओ लेकर गए थे, मैं मोहसिन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जिनको आप फरजांदे पिंडी कहते हैं, मैं उन्हें कुछ और पिंडी कहता हूँ।
एक प्रोजेक्ट, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और अनवर महमूद सेक्रेटरी थे, और किस तरह प्रोजेक्ट हीरो से जीरो शुरू हुआ और फिर उस माफी के ऊपर खत्म हुआ। माफिया मांगे जी, वो फरजांद पिंडी शेख रशीद जी इमरान खान के वज़ीर दाखिला। जी जी ठीक है, मतलब हर किस्म के सर देखे ना, ज़फर है। आफ्टर ऑल देखें जी, बात ये है कि नादिर बलोच साहब सारी चीजें आप ही की तरफ गई हैं। वैसे माफ करना, अब वो गंद नहीं रहा है पीटीआई में, सारा नहीं, चौधरी साहब लॉन्ड्री से होके गए हैं। पीटीआई में क्या था। चौधरी साहब सारे लॉन्ड्री से होके गए थे, वॉश होके गए थे, नीट एंड क्लीन होके गए, साफ सुथरे होके गए जी, थे जी, ना, जी। तो फिर वो बात तो वो पाक साफ हो अफयाज जाती रसूल चौहान जी 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 कुरैश साहब, जैसे कि दोनों मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों ने ये कहा, अपनी अपनी राय दी कि उनकी नज़र में जो है वो आधा बयान पेश किया गया है, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। आपको क्या लगता है कि इसमें मीडिया का कितना किरदार होना चाहिए, किस तरह से बात को सामने लाना चाहिए? फिर मीडिया, फिर अपने आप को देखकर मीडिया की बात करूंगा मैं, क्योंकि मीडिया मेरे जैसा मजलूम तबका पिस जाता है आजकल, क्योंकि सब लोगों ने अपने मीडिया सेल भी रखे हुए हैं। ठीक। और दूसरी बात जो ये खान साहब की मशरूत माफ़ी वाली बात चल रही है कि कोई कह रहा है मखसूस मीडिया, कोई कह रहा है इस मीडिया ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें जब निकलती हैं ना तो उसमें मखसूस नहीं रहती। आजकल का दौर अगर आप कहते हैं ना मखसूस, तो मैं इससे बिल्कुल इसको डिनाई करता हूँ, बड़ा बल्कि तरदीद होनी चाहिए इस बात की सहाफ़ी के तौर पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो खबर निकलती है वो निकलती है। ठीक है। उन्होंने मशरूत अगर चौधरी साहब को कहा है ना, तो नादिर बलोच को भी, शराजी को भी, असमा नवाज को भी उन्होंने ये खबर पहुंची कि मशरूत माफ़ी मांगूंगा। अब मशरूत की जो वजूहात सामने आई हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज देख कर बात करूंगा। अब सीसीटीवी फुटेज आप सबने भी देखी है यार, भिजवा देते नहीं, आवाम ने भी देखी है सर, आवाम ने सबने देखी है। कौन क्या कर रहा है, कौन कह रहा है किधर जाओ, कौन कह रहा है किधर से क्या करो। तो वो मशरूत माफ़ी में तो अगर मुझे अफसोस इस बात का होगा, जो हम लिखते रहे, हमें तो अक्सर लिफाफे लोटे बनाते रहते हैं, हम लिखते रहे कि आवाम को चाहिए इनको समझें। अब पिसेगा कौन? ठीक है। अब अगर वो फर्ज करें कि मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, नादिर बलोच की तस्वीर सामने आती है, मैं इनकार कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरा कारकुन मेरा नहीं है। कारकुन ये नहीं है, हालांकि मेरे पीछे निकला ये हो जाना है ये साफिया में वैसे बात करो मिसाल देने के लिए कि बलोच साहब एकदम उछल ना जाए ना, मैं कहता बता देता हूँ पहले, या शराय साहब नहीं तो देखें, इसलिए देखें ये गलत मारा जाएगी। अच्छा, कुरैश साहब, मुझे इसकी तकलीफ इस मशरूत माफी के बाद जो है आपकी बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं होने वाली, महंगाई में कोई कमी होने वाली, ये आवाम नहीं नहीं होता। करेगी। नहीं, 70 पैसे कुछ हुआ ना सर, क्या हुआ आज? सर कुछ हुआ है ना, असल में नादिर नहीं, बलोच 70 साहब पैसे ने कम भी बहुत हुआ है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी हाँ। कि हमने ओलंपिक्स में कुछ 40 साल बाद कुछ जीता है, गोल्ड मेडल। तो मैंने कहा हाँ, उसके बाद मेरा ख्याल बिजली की कीमत कम आ जाएगी, घी भी कम होगा, घी भी कम हो आटा जाएगा। चीनी सब, हाँ, पेट्रोल मुझे भी कम होगा। अच्छा गैस इस तरह वक्त से की कमी है, वापस मैं- आने ये दें। खौफ मुझे है। बलोच साहब अच्छा जी, से माइक एक छीना सवाल- जा रहा है, ये ले जी। बलोच साहब से एक सवाल कि करना है। कोई ये क्रेडिट ना ले कि अच्छा जी। तारीख में पहली बार जेल बलोच साहब मेरा सवाल, बलोच साहब मैंने मेरा नहीं सवाल। पहले काउंटर में शराय साहब के वो चंद बातें उसमें ऐड कर लेना। नहीं ऐड बात आप सवाल लूंगा, मैं आपसे एंकर को भी सुन लेना, सवाल लूंगा। एंकर को सुन सबसे पहले शराय साहब, पहले तो मैं अपनी शिकस्त का एतराफ करता हूँ खुलेआम कि शराय साहब जितनी मेरी टोन भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, और मैं उस तरह इंटरप्ट भी नहीं कर ये मौला पाता, की अता है। ठीक है। दोनों नहीं मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं ये वाली बात तस्लीम कर रहा हूँ। अब आते हैं आर्गूमेंट के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जनाब मुराद फलां हसन न्याजी फलां, सुन ले मैं सवाल भी साथ साथ बताता हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सुन लिया, आप सुन लिया। आप इतना हौसला पैदा करें कि आप अगले बंदे की तहरीक बात इंसाफ सुनें। की तरह हौसलामंद होना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले बात यह कि जी हसन न्याजी की बात की जाती है। हसन न्याजी से पहले एक लीडर को एक हाई कोर्ट के अहाते को पामाल करते हुए, शीशे तोड़ते हुए उसको गिरफ्तार किया गया, और एक पैरामिलिट्री फोर्स ने किया। वो किसके हुक्म पर हुआ? अगर किसी की इज्जत है तो कौम की भी इज्जत है, उनके लीडर की भी इज्जत है। एक बात, एक मकबूल यानी मकबूल लीडर की बात सुन आपने ये ले सर। ओ यार क्या हो गया यार, लहराना यहाँ पर वजीर आजम हाउस पे कब्जा किया जाता है, वो ठीक है, लटकाई थी, खत्म। क्या हो गया? खत्म नहीं हुई थी। क्या हो गया? शलवार में आप लोग अपना अक्स नजर आता था, क्या हो गया? शलवार में उनकी अक्स नजर आने ठीक है ना, आपने हमला करवा दिया। उनकी अक्स नजर आने शराय साहब, नहीं तो फिर मैं इस पर मैं तब्दीली बात और करूंगा। इनकलाब तो नहीं अगर हो ये गया नहीं ना? सुन सकते ना तो इनको फिर इनको क्या आप नहीं सुने, वो अपनी बात करें। अपनी अच्छा, बात बलोच साहब मुझे बार ये बार बताएं, इंटरप्ट करें। दूसरा आप प्रोग्राम के आखिर वो में यार। दीजिएगा आपने किसको कितना वक्त। ठीक है, बलोच अच्छा साहब तो सुन ले, आप लोग एक से डेढ़ मिनट तब्दीली ना लेके आए, एक से आपने डेढ़ मिनट वही रिवाज जो है वो जारी रखा। अगर आप माजी की सुन लेना, मिसालें सुन ले, दे रहे हैं। 1.5 मिनट में ये बात खत्म हो जाएगी, अगर इंटरप्ट नहीं ठीक करेंगे। है। हसन न्याजी साहब के ऊपर बात की गई जनाब, उस
रिएक्शन में मतलब अगर हुआ, मुझे एक बात बताइए, मुराद राज साहब की आईजी साहब ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कहा कि 27 कालें, और वो भी जिना हाउस के अंदर से हुई सर, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफी वो जा, बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा इनको भी माफी गई है। सर ये छोड़ देना सर, माफी है, हमें पता है ना कौन सी माफी। अच्छा, वो अंदलीब अब्बास की गाड़ी थी, वो खातून 14 महीने जेल में गुजार के आई, और वो तो बेचारी कारकुन थी ना, ये तो रहनुमा थी अंदलीब अब्बास। अंदलीब अब्बास को इसलिए छोड़ दिया गया, बल्कि एक दिन 1 घंटा भी कैद में नहीं रखा गया, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसी तरह मुसर्रत चीमा, फला चीमा, जितने अफराद हैं, अगर ये मुल्क की अलामतों पर हमला था तो फिर किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए था, सबको बराबर सजा मिलती, मैं भी मान लेता। और इत्तेफाक करता हूँ, बात ठीक है ना जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अगर ये रियासत की अलामतों पर हमला था, अगर ऐसा नहीं था तो फिर प्री प्लान्ड वो सब कुछ। इमरान खान का बयान ठीक है कि एक जमात को, एक पॉपुलर जमात को डिसमेंटल करने के लिए सब कुछ ये किया गया, और आज भी यही बात है कि जिसने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो भी परवेज इलाही की, हाँ पहले तो धुल के ही लॉन्ड्री में आए धुले ना सर, और उसके बाद कोई चला गया परवेज खटक तीली पलवान के उसमें। तो मतलब ये है कि ये कौन सा में आ रहा है। नहीं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो सर, हमने 36 प्रेस कॉन्फ्रेंस नशे प्रेस क्लब में कवर चले किया। ओवर टू शेराजी साहब, ठीक है ना ओवर टू शेराजी नहीं, साहब, अब अगला सवाल जो मैं कर रहा हूँ, नहीं इसका वो कर लेंगे, चले 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 शेराजी। अच्छा, अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस तरह इन्होंने आर्गूमेंट बिल्ड किया कि जी हसान न्याजी ने पतलून जो लहराई वो ठीक किया। मैं बड़ा आजकल ये जो जमहूरी इन्होंने आर्गूमेंट दिया है ना कि वो मकबूल लीडर को पकड़ा गया तो उसने भी लहरा दी, रिएक्शन में लहरा दी, तो क्या होगा? और मुझे कह रहे हैं भुट्टो से आप डरते हैं। अच्छा, आप सुन लेना, क्या बहुत कुछ हो गया सर, इस तरह नहीं होता, बहुत कुछ हो गया सर, बहुत कुछ। आप एक साबिक वजीर आजम को जाके पनामा कामा में आप मिठाइयाँ खा रहे थे, ठीक है, अदालत का फैसला है ना, अदालत के, यहाँ भी अदालत के फैसलों पे चले ना, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं अदालत के फैसलों पे? यहाँ पे तो आप उस वक्त तो आप बूटियां डालते जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं भी 1.5 मिनट में बात खत्म करता हूँ। अच्छा 1.5 मिनट में ही बात खत्म होगी। अब आप देखें कि आर्गूमेंट जो बिल्ड करते हैं ना, इनके इतने कमजोर आर्गूमेंट हैं, इतने कमजोर कि एक बात कहते हैं, एक अब हमारे आर्गूमेंट भाई कुछ अवाम के लिए भी छोड़ दो, भाई अवाम के लिए भी छोड़ दो, उन्होंने भी कोई फैसला करना है, ठीक है ना। आप हमारे आर्गूमेंट में नहीं, अपना आर्गूमेंट दें। मैं अपना अब मैं बोल जी जी बोलिए। अच्छा, अब ये बात है कि एक वजीर आजम को जब देखें, ये वो लोग हैं जो आज से मुझे कह रहे हैं ना भुट्टो से आप डरते हैं। 4 दिन पहले यानी अपनी हुकूमत में क्या कह रहे थे? जनाब बाजवा बाप है, यही कह रहे थे ना। गलत बात है, गलत उस वक्त नहीं की, आपने नहीं की, आपने नहीं की। इमरान अहमद खान न्याजी, जब इमरान अहमद खान न्याजी, 1 मिनट बात सुन ले, अब सब्र करें ना, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। मुझे बात करने दे, अपनी टर्न पे बात करें, अपनी टर्न पे बात करें। दूसरी बात मुझे ये बताएं, एक शख्स ये कह रहा था कि ISI मेरे फोन टेप करती है तो क्या हो गया? एक शख्स ये कह, इमरान खान ने गलत कहा ना, हाँ, तो ऐसा शख्स कैसे लीडर हो सकता है जिसको जमहूरी रवैयों का ही नहीं पता, जो ISI को कह रहा है कि आप मेरे फोन टेप करें? ऐसा शख्स तो जमहूरी रवैया ही नहीं, आगे क्यों बढ़े? देखें, जिसने जो गलती की है पहले उसको उसका जो है वो मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, आगे क्यों आगे बढ़े? नहीं, चौधरी साहब से आप बात करनी, सवाल रह जाएगा। चौधरी साहब, आप चौधरी साहब, सवाल ये है कि जिस तरह बलोच साहब ने भी कहा, मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कारकुन साबित हो गए तो वो उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे। चौधरी साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी मैं सुन रहा हूँ। वो लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं, और पहले बहुत सारे लोग जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि अंदलीब अब्बास का भी और फरदौस आशिक अमान का, परवेज खटक का भी, सब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे वो साफ होते गए। अब अगर जमात के सारे लोग इस तरह से निकाल देंगे तो फिर तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है? क्या इमरान खान सिर्फ अपनी वाहिद जात के लिए मशरूत माफी मांगने को तैयार हुए, यानी जमात के लिए नहीं? देखें, एक तो सबसे पहले पता नहीं क्यों हमारी हर जगह के वो तंदी गिरती है इमरान खान के ऊपर। इस वक्त ठीक है, पॉपुलर लीडर हैं और मेरी यार सुन लेना, मैं मेरी एक बार सुन ले। देखें, अगर आप देखें, आप ये शिराजी साहब भी गवाह हैं इस बात के, नादर भी गवाह है, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खुद करवाई थी, ठीक है। और सवाल इवन के हमारे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो
कोई भी हो, चौधरी साहब मौका इतना कि अडियाला से सीधा प्रेस क्लब है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से शुकूक व शबात उठते हैं। अभी तक किसी 9 को मई सजा मिली तो देखें, नहीं है, आप 9 कैपिटल मई हिल्स का देखें ना, साल नहीं हुआ तो साल हमारे- भर पहले हो गया। नहीं हुआ। जज जो है वो स्टे ऑर्डर देखें अब यहाँ पर बदकिस्मती तो ये वैसे है ना, जज भी सही नहीं बना। नहीं वैसे ब्लो जज साहब आपको नहीं चाहिए। ब्लो साहब बंदियाल जैसे लोग बैठे हो तुम। एक मिनट इजाजुल हसन कौन शिराजी भागा? साहब मेरी बात ज़ाहिर अली अकबर नकवी भागा, इजाजुल हसन भागा, क्यों दोनों भागे? ब्लो साहब माइक वापस कर ब्लो दोनों साहब ने रिजाइन क्यों किया? इजाजुल हसन और मुजाहिर नकवी ने माइक किया। वापस हो रहा है। शिराजी साहब मुझे ये बताएं ब्लो साहब, आप लोग के लिए रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं, आप लोगों के लिए जो है अलग निज़ाम है और दूसरों के लिए अलग निज़ाम है, नहीं खुले। हमेशा फैसले होते रहे। इमरान एक मिनट, एक मिनट। आप लोगों ने अपनी जवाब एक मिनट, हुकूमत में थे, हुकूमत में थे। सवाल मुझसे हो रहा है, मुझे जवाब देने दो। चौधरी साहब 10 मिनट लेट हुआ हूँ तो जज साहब ने मेरा एडवर्स बिस्मिल्लाह। फैसला दे दिया था। ये इन्होंने इमरान कहा- अहमद खान इन्होंने- 4 बजे पहुंचता था उस वक्त अदालत इन्होंने खुल जाती सबसे थी। बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। सब- हाँ, अदालत सबूत- रात 1 बजे तक चली, हाँ। लेकिन इद्दत जैसे गलीज केस में सजा देने के लिए। उससे पहले हाँ, भी चली। अदालत खुली, हाँ, सैफर केस में सजा देने के लिए। हाँ, अदालत खुली रात 1 बजे तक उसकी हुकूमत को बरतरफ करने के लिए। हाँ, अदालत खुली पार्लियामेंट को एक सो कॉल्ड जो एक साजिश के तहत जो था इद्दत केस उसको पे राय दें। तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इद्दत केस इमरान पे राय खान के दें। लिए इद्दत कौन केस सी पे राय दें। गलीज क्यों कहा इद्दत केस को आपने? गलीज तो है। गलीज जिस हाँ, एक मिनट, मैं इस आर्गुमेंट गलीज केस इस कौन सा ऐसा हम में से बैठा हुआ शख्स है कि जो अपनी माँ बहन के प्योरिटिकल सर्कल जो है वो गिनने के लिए आप कहे मरियम कि नवाज जजेस के आप लिए लोगों ने क्या नहीं किया? ओ यार गलत क्या केस आप गलत है लोगों यार, ने- गलत सी बात कर मरियम रहे हैं नवाज के बारे में क्या नहीं कहा? और केस की बात हो रही है यार, ये तो बेनाज की बात हो रही है। यहाँ पर आप बेनजीर को पीली टैक्सी कहते रहे, शर्म भी नहीं आती। क्या कहता नहीं है? आप सहाफी हैं या एक जमात के तर्जमान है? नहीं सब साफी में तर्जमानी आप कर रहे हैं, मैं केस की बात कर रहा हूँ। हवा तो ऐसे करूंगा सब शिराजी को मैं कह रहा हूँ, तो भागा नहीं बात करो यार। देखिए देखिए, आप अदालत एज ए कानून है। सहाफी बात करें जो सब जमातों के साथ होता है। आपने हर जगह पे मतलब एक डिफेंड करना है। कानून के तहत केस बात नहीं हुआ। सुने कौन सा? शिराजी गलत हुआ है जी, देखिए। बलोच साहब जब कौन सा कानून जहाँ पे ठहर नहीं सका मंचों पर उड़ा के रख दिया है? चौधरी साहब, कौन सा मुझे- कानून की बात कर रहे हैं आप? नहीं। आराम से खा ले, देखो, इस बात वजह सुने से चौधरी साहब हाँ। चौधरी साहब बलोच साहब सुने, शर्मिला फारूकी ने भी जेल काटी है और भी बहुत सी खवातीन है जो मिसाल बनी है, तो हर जमात ने हर सियासी जमात ने नहीं है। कुर्बानियां दी हैं। फरियाल तालपुर को ईद की रात उठा नहीं, उठाया था। एक मिनट ठहरे ठहरे, एक मिनट, मरियम नवाज एक मिनट सर, एक मिनट। बेगम नुसरत भुट्टो के सर पर लाठियां नहीं बरसी हैं? फातिमा जना के साथ नहीं हुआ इस मुल्क में, जिसे हम मादरे मिल्लत कहते कौन हैं? है इसको आप आपकी पार्टी बाप करार दे? जी जिनके सर पे है वही से बना हुआ ना, वही किसी ने कहा तो नहीं, आप तो क्या के बनाते थे? बात ये आज है। की आज की कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीब थी यार, जब तारीखी था, हाँ? देखें, रूह इमरान और खान भी यही बातें कर्ब करता और था। मुनव्वर जनरल बाजवा से नफीस जज और बलोच। जर्नैल नहीं है, जनरल बाजवा बलोच साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ठीक ਸਾਡਾ है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चौधरी साहब मैं अब गुजारिश जो ये है आपसे कहूंगी सम अप करें ताकि कि प्रोग्राम इद्दत का वक्त केस बहुत को लंबा मैं हो गया। इसलिए गलीज कह रहा हूँ कि देखें आज ये उन ख्वातीन के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत खौफनाक है कि आज एक शख्स तलाक दे देता है और 6 साल बाद कहता है कि 2000 दिन बाद। मैं रुजू करना चाहता हूँ। ये देखे ना, सर एक मंशात इस- फरोश ने भी लेकिन जमानत ले ली है। हाँ, खान साहब का उस हवाला केस वो हवाला जी, जी, देके वो केस भी बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक बात करते हैं जी, बतौर पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं है। आप हमारा पासपोर्ट भी चेक करवा लें वहाँ चौधरी से, साहब, हमारे समझ एक करना मिनट जी चाहूंगी नंबर्स भी चेक करवा लें। ये रियासत है तो हम हैं, रियासत हम हैं, और इस रियासत के मैं साथ तो बेटी हम मानते ही हैं। नहीं है ना, आप कैसे बेटी बना ना रहे हैं? माने लेकिन बेटी तो है। इधर देखें, इधर सबको पता है। इधर इधर केस गलीज है। सबको पता है कि दोनों वक्त हो जाएगी, बीवी बेटी शाह मानना साहब सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। बलोच नहीं, आप साहब, करें, करें, बेटी मानना गलीज बात नहीं यह है, है इज्जत कि- केस कराना इनकी गलीज बात सुन ले, है। इनकी बेटी बात, तो बेटी इनकी माने ना, बात, इनकी बात। इज्जत केस अगर गलीज है हाँ, तो बेटी का वरना ना करेंगे। अच्छा नहीं, आप बेटी का आप तकरीर नहीं करें। बात कर ले। तो फिर कर ले। छोड़ो शाह साहब, मैं कहता हूँ हमारा एहतराम का रिश्ता अगली बार बरकरार है। अगली बार अगली बात अगली अगली एपिसोड में करेंगे। अभी बहुत बात ज्यादा ये है कि अमेरिका की अदालत ने यह तय किया। केस को जस्टिफाई करें, मैं कहाँ बात मुझे ये बताएं कि वो अटेस्टेड कापी सादक अमीन कैसे बन सकता है, और ये लोग डिफेंड कर रहे हैं एक जना करने वाले शख्स को, ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इस पे हम अगली बैठक में जरूर बात करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, और जाते जाते यही कहूंगी कि जो भी जी जी जो बेबी नजर आई थी साहब। बस, बीवी थी ना, बेटी तो नहीं थी ना, वो निकाह किया हुआ था ना, निकाह किया हुआ था ना, निकाह किया हुआ था। इसने तो तस्लीम निकाह भी नहीं किया, सीता वाइट इसने तो निकाह भी तस्लीम नहीं किया। एक जना करने वाले मर्द को आप अपना लीडर बना रहे हैं, आप लीडर बना रहे हैं, आप लीडर बना रहे हैं, आप लीडर बना रहे हैं। अच्छा जना करने